वेलकम दोस्तों, सुबह ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत। और आज हम वोल्टेज और करंट सोर्सेज के टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या होते हैं, क्या इसकी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या इंटरनल इम्पीडेंस होता है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और और क्या बोलते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का एक्सिस्टेंस क्यों नहीं है। और लास्ट में देखेंगे कि conversion of voltage source or voltage source to current source. Now we move on the contents of the video which we are discussed in the video. Now these are the content of the video. Introduction: voltage source, types of voltage source, DC voltage source, AC voltage source, ideal voltage source, practical voltage source, concept of current source, ideal current source or practical current source, conversion of voltage source to current, conversion of voltage source to current source or current source to voltage source. It is the last topic we discussed in the video. First of all, we start from the source. What is source? A source is connected in a circuit to supply the current or a voltage, or we can say power to the circuit. स्रोत वह चीज़ है जो कि हम किसी सर्किट में लगाते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी सर्किट को ऑपरेट कर सकें। ये हमारा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Now we take an example of source. Now we take an example of source as a torch or supply which come from the our houses, domestic supply, which the 24 at 50 hertz voltage. Now it is shown in a figure that source is used to supply power to the load to which it is connected. The same thing is written in the slide that the source is used to supply the power in a circuit. किसी भी पर्पज में हम पावर को सप्लाई करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो सोर्स होता है, और सोर्स के में से करंट फ्लो होती है हमारे लोड में। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम सोर्स टू लोड. नाउ वी मूव ऑन द voltage source, which is a part of a source and a voltage source. And the voltage source is a type of a voltage source in which is give the power or a voltage continuously. कोई भी डिवाइस जो हमें कंटिन्यूसली वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स वह होता है जो हमें डायरेक्ट वोल्टेज देता है, अल्टरनेटिंग और अल्टरनेटिंग वोल्टेज ना देगा, वो हमें डायरेक्ट वोल्टेज देगा। और इसकी जो वैल्यू होती है फिक्स होती है 1.5 वोल्ट और 12 वोल्ट। एसी वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज तो नहीं कर सकते, मगर इसकी साइकिल्स बनी होती हैं। फ्रिक्वेंसी एट 50 हर्ट्ज इट सप्लाई द 220 वोल्ट सप्लाई. Its values are calculated by using the RMS value. RMS value we can define in the next slide or next video. RMS is root mean square. For calculating the current or a circuit, we use the root mean square. But there is no concept of root mean square in a DC voltage. Now we move the circuit. In this circuit, we show that the BS is a source whose internal impedance is ZS, and BS is a DC source whose internal resistance is RS. Both symbols are given in a figure. Now, current in a circuit. Current in a circuit is calculated by the I equal to Vs upon Zs plus Zl, Bt equal to I into Zl, or for final value we get the Bt equal to Vs upon 1 plus Zl upon Zl. Now for a DC, I equal to Vs upon Rs plus RL, Bt equal to I into RL equal to Vs into RL or Rs plus RL इक्वल टू Vs अपॉन 1 प्लस RS अपॉन RL. आइडियल वोल्टेज सोर्स. आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है इसका इंटरनल इम्पीडेंस जीरो होता है और इसका ओपन सर्किट कह सकते हैं, इसमें की वोल्टेज फ्लो होती है और करंट इसका जीरो होता है. कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू एंड फाइंड द ग्राफ विच इज शोन इन अ फिगर. द ग्राफ शोन दैट is constant, current is constant, voltage remain constant when there is no internal impedance. It is case of ideal current, ideal voltage source. Practical voltage source. Practical voltage source shown in a figure that Zs is the internal impedance, and in the DC case Rs is the internal impedance, and the current is increasing by increasing the value of rotor resistance, and the voltage is decreasing. A practical voltage source can be considered to consist of an ideal voltage source in series with the internal impedance of source. No zero internal impedance. इसका जीरो इंटरनल impedance नहीं होता, लगभग जीरो के बराबर होता है मगर जीरो नहीं होता. Now IV characteristics curve of practical voltage source. In this figure, Bs is a source whose value is 5 volt. Rs is a resistance which is known as shunt resistance or a
source resistance whose value is 1 ohm. RL is a load resistance whose value varies from 1 ohm to 10 ohm. इसकी वैल्यू हम चेंज करके वोल्टेज और आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज और आई की वैल्यू आ गई हमारी। पहला दिया हुआ पहला पॉइंट कि इन अ इनफाइनाइट सर्किट, इनफाइनाइट ओपन सर्किट, इनफाइनाइट इम्पीडेंस मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट जीरो होती है और वोल्टेज जो होती है फिक्स होती है 5 वोल्ट, जो हम सोर्स वोल्टेज पर लगाते हैं। जैसे जैसे हम उसकी इम्पीडेंस को चेंज करेंगे, पहले 10 लेंगे, फिर 9 लेंगे, 8 लेंगे, 7 लेंगे, 6 लेंगे, उससे क्या होगा, हमारे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और वोल्टेज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा, जैसे कि कर्व में दिखाया हुआ है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स। करंट सोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब वोल्टेज है तो करंट भी होगा, बिकॉज ओम्स दैट say that V equal to IR. I is a current, R is a resistance. V is directly proportional to I. That's why the current concept is come. And now it is a figure shown that IS is a current source and ZS is a impedance. Now ideal current source. A current source is that which supply a constant current source to load even if impedance varies. आइडियल करंट सोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा इम्पीडेंस कितनी भी चेंज हो, मगर हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। इनफाइनाइट इंटरनल इम्पीडेंस, इनफाइनाइट इंटरनल इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो होगी इसकी इनफाइनाइट होगी। अब ये बुझा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स इज़ इम्पॉसिबल। वाई? इन्होंने बताया कि आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि हमारा आइडियल करंट सोर्स पॉसिबल होगा तो उसकी जेडल जो है, इसकी लोड इम्पीडेंस जो होगी ओपन सर्किट की, वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। यदि इनफाइनाइट होगी तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए ओपन सर्किट में। एनी सोर्स डज नॉट प्रोवाइड कांस्टेंट, कोई भी सोर्स जो होता है वो कांस्टेंट करंट सप्लाई नहीं कर सकता यदि फॉर अ इनफाइनाइट सोर्स। इनफाइनाइट लोड के लिए कोई भी कांस्टेंट करंट सोर्स नहीं कर सकता। यदि वो करेगा तो उसमें लॉसेस होंगी, जिसकी वजह से लॉसेस की जो वैल्यू होगी वो भी इनफाइनाइट होगी। नाउ इन दिस फिगर, हाँ, इन दिस फिगर IS the practical symbol of a current source. It is the practical symbol of current source in which the ZL is connected, and I1 is a current which is flow in the ZS, and IL is a current which is flow in the ZL. Now we calculate the value IS equal to IL plus L1. I1 equal to a current in which is flow in a ZL, and IL is a current which is flow in ZS. सही है। IL की जो वैल्यू होगी वो IS माइनस IL होगी, पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ZS एंड ZL जो है पैरेलल हैं, जब जो इनकी वैल्यू जो होगी I1 ZS इक्वल टू IL इंटू ZL। सॉल्विंग दैट वो इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ IL। IL इज इक्वल टू 1 अपॉन ZL, 1 अपॉन 1 प्लस ZL अपॉन ZS इंटू IS। IS इज अ सोर्स शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट होती है। ZS जो होते हैं वो ग्रेटर होता है ZL से, तो IL इस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IS। हम इसके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। IS इक्वल टू 5 एम्पेयर दिया, ZS जो है 5 मेगा ओम दिया हुआ है। 500 ओम पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 4.99 है। 1 किलो ओम पे 4.99 है, 10 किलो ओम पे 4.95 है, और 10 के पे 4.54। तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। कन्वर्सन ऑफ वोल्टेज टू आई एंड वाइस वर्सा। किसी भी वोल्टेज को, किसी भी सोर्स को वोल्टेज या करंट सोर्स में कब उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। जब हमारा लोड रेजिस्टेंस सोर्स लोड से ज़्यादा हो तो हम उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और RS इज ग्रेटर देन RL, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स। वोल्टेज टू करंट सोर्स कन्वर्जन in a figure, a voltage source with its independent impedance is shown in a figure, and it is converted finally in a current source by given in a figure in this form. IS की जो वैल्यू होगी BS अपॉन ZS1 होगा, और IS जो है शॉर्ट सर्किट करंट है। IL की वैल्यू 0 है ओपन सर्किट के लिए। ओपन सर्किट की वोल्टेज जो है वो BS से डिफाइन करते हैं। ओपन सर्किट की जो वोल्टेज जो होगी वो IS ZS2 होगा, और BS की जो वैल्यू है IS ZS2 है। BS इज source resistance and ZS is the impedance, and it is considered that a open circuit, there is no load is connected. then ZS1 की जो वैल्यू होगी BS अपॉन IS1 होगी। BS ब्रैकेट BS अपॉन IS इज इक्वल टू ZS1। ZS1 का मतलब ये ZS1 is the impedance of a voltage source and ZS2 is the impedance of a current source, both are equal।
but the current are different. This is a current conversion after the voltage source. Thanks. If you like the video, subscribe. If you want to the PPT of this video, you can comment in a video. Thanks.